Good morning, students. Continuing with Economics, Standard 12th, Chapter number 4, Banking and Monetary Policy. So, next topic is classification of banks. Banks are broadly classified into two categories. One is commercial and the other one is central bank. Two types of banks are there. One is commercial and one is central bank. So, first of all, commercial banks. According to the Banking Companies Act 1949, commercial bank is one which transacts the business of banking. Commercial bank मतलब वो particular bank जो basically business banking के नाम से पहचाना जाता है. That is accepting deposits from the public. Public के पास से पैसा लेती है. Accept करती है ऐसे deposits for the purpose of lending. किसी को दे सके या investment कहीं कर सके. Repayable on demand. आप जब अपना पैसा वापस मांगोगे आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक. आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेक हो, ड्राफ्ट हो, पे ऑर्डर हो और अदरवाइज. A commercial bank is a business unit which provides banking services for profit. Commercial bank एक business unit है जो basically banking service आपको कमा दे रही है with the intention to earn the profit. People entrust their saving with the banks, which banks handle in the form of deposits. पब्लिक अपनी जो मंथ के एंड में जो सेविंग्स यहाँ पे होती है वो यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं इन द बैंक. बैंक ऑल्सो यूज सम ऑफ द डिपॉजिट्स. बैंक उसमें से कुछ पैसा आप यूज करती है फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयरफॉर दे गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स. इसलिए वो पैसे पे उनको यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे दिए जाते हैं डिपॉजिटर्स को. बैंक may use deposits for investment. आपके पैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पस में भी यूज आप कर सकते हैं इन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट. और दे मे बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. या बैंक आपके पैसे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकती है. और दे मे लेंड सम प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू पीपल हु नीड मनी. या तो फिर बैंक जिसको पैसे आपके चाहिए हो, लोन लेना हो, तो बैंक उसको लोन प्रोवाइड पे कर सकती है विद सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. When bank invest some of the deposits, they earn profit. जब बैंक यहाँ पे अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट यहाँ पे करती है तो उसको प्रॉफिट मिलता है. एंड when they lend this money, जब वो पैसा किसी को उधार देती है तो उसको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है. The lending rate of interest is higher than the rate of interest with the banks give on deposits. जो बैंक अगर आपको लेंडिंग कर रही है, लोन दे रही है, उस पर जो आप इंटरेस्ट ले रही है हमारे पास है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो इंटरेस्ट मुझे मिलता है मेरे डिपॉजिट्स के ऊपर. एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों का जो डिफरेंस यहाँ पे है उसको बोलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग बाय द बैंक्स. हैंस बैंक्स आर कॉल्ड कमर्शियल इंस्टीट्यूशन. इससे बैंक को बोलते हैं वन टाइप का कमर्शियल इंस्टीट्यूशन. जस्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज कि भाई मेरे पैसे SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. सपोजली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज पेइंग मी ऑन सेविंग अकाउंट 6%. Okay, but at the same time when I am taking the loan from SBI, home loan bolo या car loan या bike loan, whatever loans if I am taking, they might be charging 9.25 10% rate of interest. So the difference between the interest is the amount of profit which the banks are earning. So that is why banks are called as commercial institutions. In other words, banks undertake activity of mobilizing people's money. हमारे पैसे यहाँ से वहाँ मोबिलाइज यहाँ पे करती है in order to make the profit and therefore they are commercial institutions. Now, what are the functions of commercial banks? So commercial banks perform several functions which are as under. So number A is the primary function, the main functions, primary functions with the commercial bank is having. So number one is accepting the deposits. A bank accept money from people in the form of deposit. Bank पैसा आपके पास से accept करती है as a deposit. It gives safety to the deposit. वो safety देती है अपने customers को. ठीक है. By acting as custodian of the funds. आपके पैसे हमारे पास सेफ है, इसकी सेफ्टी आपको मिल जाती है. इन अ वे पीपल लैंड देयर सेविंग टू द बैंक. इसलिए पब्लिक क्या करती है अपने पैसे बैंक को दे देती है और इंटरेस्ट कमा लेती है. डिपॉजिट्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, नंबर वन इज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स. करंट अकाउंट बेसिकली बैंक में ओपन होते हैं इन द नेम ऑफ द बिजनेस और फर्म हो या इंडिविजुअल के नाम पे अकाउंट्स ओपन. हाँ, बिजनेस हो तो ये बेसिकली पॉसिबल है करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन यहाँ पे करना. द डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड देन डिपॉजिट्स इन एनी अदर अकाउंट. डिपॉजिट्स यहाँ पे बहुत लिक्विड. इट मीन्स आप कभी भी जितने चाहे उतने डाल सकते हो, जितने चाहे उतने निकाल सकते हो. विड्रॉवल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ डे. हम जितनी बार चाहे उतने निकाल सकते, जितनी बार निकाल सकते, जैसे मैंने आपको बताया. The customer of this account are given a checkbook, but they do not get interest on current account deposits. एक checkbook मिलता है.
आपको लेकिन आपके बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं. ओके, माइंड वेल दैट. On the contrary, certain time banks may impose some kind of service charges on this account. लेकिन बैंक सर्विस चार्ज लेती है इसके ऊपर. A customer even obtain overdraft facility. कस्टमर यहाँ पे overdraft facilities भी करवाता है for business purpose on this account as per the rules of the bank. मेरे बैंक में पैसा हो नहीं हो कोई फर्क पड़ता नहीं है करंट अकाउंट में, because I am not getting any interest. हाँ, even with zero balance also I can withdraw the amount. So that's called as overdraft. मेरे अकाउंट में बैलेंस हो कि नहीं हो, मेरे चेक, बिजनेस चेक इजीली सैंक्शन ऐप पे हो जाते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ओके, so now coming to number 2, saving account deposits. You can say saving. Okay, people usually deposit the saving for a short period in their account for which बैंक यहाँ पे उसको इंटरेस्ट देती है. अपॉन रिक्वायरमेंट जब मुझे पैसे चाहिए चेक से आप विड्रॉ कर लो, विड्रॉ स्लिप भर के आप विड्रॉ कर लो. इन प्रेजेंट टाइम दे ऑल्सो कैन विड्रॉ द मनी. आज के टाइम पे मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉ पे कर सकता हूँ. Next is my facility of recurring deposits. The word says recurring, again and again. So these deposits are also one type of savings only. Okay. People do not wish to save or cannot save bigger sum of money. Save and deposit small amounts each month. हर मंथ में एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम कर लो कि इस टाइम पे मुझे बैंक में करना है अमाउंट डिपॉजिट. वो एक फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स टाइम पीरियड अवेलेबल यहाँ पे होता है. Thus, this deposit are called recurring deposit. हर बार मुझे पे करना पड़ता है. By rules of some bank, if the person skip to deposit some month money in this account, he or she may have to pay a penalty. अगर मैंने ऑन टाइम डिपॉजिट नहीं करवाया होता है तो मुझे अमाउंट ऑफ पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है. एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जितना भी रिकरिंग का पैसा बनता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो आपको आपके अकाउंट में वापस से मिल जाता है. हाँ, कंपेयर टू माई सेविंग अकाउंट रिकरिंग पे इंटरेस्ट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिलता है. फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट इज द वर्ड सेट्स फिक्स. एक टाइम पीरियड आपने पहले से फिक्स कर लिया होता है. फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड, आपने बैंक को एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिए होते हैं. तो बैंक विल यूज द पर्टिकुलर अमाउंट फॉर पर्पसेस which are for long term purposes. Okay, then after completion of your time period, okay, bank will give you your principal amount along with the rate of interest. बैंक पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी ज़्यादा पे करती है एज कम्पेयर टू माई सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और यू कैन से रिकरिंग अकाउंट्स. इवन करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट है ही नहीं वैसे. कस्टमर्स गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ऑन सच डिपॉजिट. कस्टमर्स को अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी से प्रोवाइड की जाती है. नंबर 2, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज. When individuals or business require money for personal or investment purposes, they borrow from the banks. बैंक से borrow करती है, पैसे लेती है. And banks provide credit by charging a rate of interest. बैंक यहाँ पे credit provide करती है, उधार देती है और interest यहाँ पे charge करती है. In terms of time period, borrowing credit can be for short term. Borrowing यहाँ पे short term के लिए भी होता है, medium term के लिए भी होता है, long term के लिए भी होता है. These time periods are not strictly fixed and may vary for different activities. इतना नहीं है कि ऐसा ही है, इतना ही है, वो वेरी होता रहता है. However, in a theoretical sense, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल तक, मीडियम टर्म का मतलब होता है 1 साल के बाद और 5 साल से पहले, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल से लेके 15 साल तक या मोर देन दैट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्पस, क्रेडिट कैन बी फॉर पर्सनल रीजन. क्रेडिट जो उधार मिलता है पर्सनल रीजन से भी मिलता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए भी मिलता होगा या फिर बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी मुझे मिलता होगा. हाँ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अलग अलग होते होंगे डिपेंड अपॉन द पर्पसेस. Number 3rd function by commercial bank is payment and withdrawal facilities. Bank basically provides easy payment and withdrawal facilities अपने customers को in the form of check से withdraw करो, withdrawal slips है या drafts है या pay order है, ATM facilities है यहाँ पे, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप कैसे भी पैसा विड्रॉ पे कर सकते हो. क्रेडिट क्रिएशन, listen to it, very important topic is credit creation. Banks undertake the activity of credit creation to ensure that the supply of money in the economy fulfill the demand for money. बैंक यहाँ पे मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करती है, पैसा प्रोवाइड यहाँ पे करती है ताकि सप्लाई ऑफ मनी जो इकोनॉमी में होना चाहिए और डिमांड ऑफ मनी को फुलफिल करे. जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मार्केट में अवेलेबल हो जाना चाहिए, अदरवाइज इन्फ्लेशन हो जाएगा. बैंक्स क्रिएट मनी फॉर द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मनी. बैंक पैसा क्रिएट करती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, जो उसके पास अवेलेबल है उसमें से, डिपॉजिट में से. thereby add to the supply of money in the economy. जो पैसा आपने बैंक में रखे होते हैं वही पैसा बैंक मार्केट में सप्लाई करती है. When credit creation by bank increases, the supply of money increases. The credit creation बढ़ती है तो supply of money मार्केट में बढ़ती है. And when credit creation decreases, the supply of money reduces. The credit creation यहाँ पे कम होता है, सप्लाई पे कम होता है. बैंक जो आपको उधार दे रही है, क्रेडिट क्रिएशन उधार दे रही है ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा है,
उधार कम देती है बैंक तो सप्लाई कम हो गया. When a bank lends money for primary deposits, the borrower has to open an account in the same bank. बैंक क्या करती है, अगर आपको पैसा देना होता तो बैंक क्या बोलती है, काम कर तो अपना अकाउंट मेरे बैंक में ओपन कर, और अनदर ब्रांच इन ऑर्डर टू डिपॉजिट द चेक ऑफ द लोन, जाकि वो चेक बैंक उसके अकाउंट में डाल सके. borrowed sum of the money, when the check is credited in the new account, जब चेक क्रेडिट होता है मेरे अकाउंट में, it becomes a derived deposit. इसको बोलते हैं वन टाइप का derived deposits from the bank. okay, for बैंक के लिए वन टाइप का बनता है derived deposits. From this derived deposit, the bank can create still another loan account for the third person. बैंक बोलती है अब तुझे ये पैसे जिसको पे करना है, एक काम कर उसको बोल मेरे अकाउंट में, मेरा बैंक में आके वापस अकाउंट बना के जाओ, तो थर्ड पर्सन का भी अकाउंट बन गया. द थर्ड पर्सन लोन बिकम वन मोर डिपॉजिट फॉर द बैंक. थर्ड पर्सन का लोन एक और बन गया डिपॉजिट यहाँ पे. Thus a bank can create several deposits from primary deposit. इस तरीके से बैंक यहाँ पे अलग अलग डिपॉजिट बनाती है प्राइमरी डिपॉजिट से. अगर आप देखें तो सपोजली पर्सन ए इज दैट, ओके, पर्सन ए वॉन्ट्स अ लोन अमाउंट ऑफ ₹1,00,000. तो पर्सन ए बैंक में जाता है, बैंक उसको बोलते हैं काम कर मेरा यहाँ पे अकाउंट खोल दे, ओके, लोन चाहिए, अकाउंट खोलो, लोन ले लो, तो बन गया मेरा डिपॉजिटर एक. पर्सन ए को पर्सन बी को पे करना है, सपोज प्रॉपर्टी परचेज के, तो पर्सन बी को पे करना है, तो बैंक बोलते काम कर पर्सन बी को बोल कि मेरा यहाँ पे अकाउंट ओपन यहाँ पे करते. ओके, तो वन सेकेंड पर्सन बी का अकाउंट ओपन करवा दिया. बैंक ने पर्सन ए को लेंडिंग किया और पर्सन बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. इससे क्या हुआ, प्राइमरी डिपॉजिट्स बढ़ गए. एक तो अगर बैंक ने लेंडिंग किया तो सपोज 9.25% का बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, वो पैसा बैंक के पास ही है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दैट. पैसा बैंक के पास ही है, इट इज जस्ट ऑन पेपर, आपके अकाउंट में आ गया. ओके, वो पैसा कहाँ चला गया, वापस पर्सन बी के अकाउंट में चला गया, तो पर्सन बी के बैलेंस हो गया, तो पर्सन बी को इंटरेस्ट मिलेगा. तो इंटरेस्ट तो कितना मिलेगा, ओनली 6%. तो एक जगह पे लेंडिंग से बैंक ने कमाया 10% सपोजली, एक जगह पे डिपॉजिट्स में बैंक को देना पड़ा 6%. तो व्हाट हैपेंड, बैंक इज अर्निंग द प्रॉफिट. क्रेडिट क्रिएट भी हो गया, ओके, क्रेडिट क्रिएशन भी मार्केट में हो गया, प्लस बैंक को प्रॉफिट भी यहाँ पे होना स्टार्ट यहाँ पे हो गया. Besides, when the borrower withdraws the loan amount from his or her account and spends it, there is a great circulation supply of money in the economy. जिसके अकाउंट में पैसे आ गए, उसने पैसा बोरो कर लिया, बोरो करके उसने पैसे को यहाँ पे यूज करना चालू कर दिया, वन सेकेंड मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी. नो बैंक कैन लेंड द फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम, कोई भी बैंक अपने पूरे पैसे, जितने पैसे मेरे अकाउंट में पूरा मैं विड्रॉ पर नहीं कर सकता हूँ. ओके, और जो मेरे डिपॉजिट्स के पैसे है बैंक में, बैंक वही पूरा लैंडिंग नहीं कर सकता. सपोज मेरे बैंक में 50,000 है, तो बैंक वो 50 के 50,000 पूरे के पूरे पार्टी ए को नहीं दे सकता लैंडिंग के वजह से. फ्रॉम एवरी डिपॉजिट द बैंक हैज टू कीप असाइड सम प्रोपोर्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स. हर एक डिपॉजिट में से बैंक को कुछ पैसा पे साइड पे रखना पड़ता है बाय वे ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, इट्स कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो. दस दे कैन लैंड द रिमेनिंग मनी ओनली, कुछ पैसा अपने पास रखो, बाकी पैसा आप लैंडिंग यहाँ पे करवा सकते हो. Now with an example I will make you more clear कि बैंक किस तरीके से पैसा कमाती है बेसिकली. ओके, इफ अ बैंक हैज प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ ₹1,000, उसके पास 1,000 है डिपॉजिट, सपोज पर्सन ए ने रखे बैंक में ₹1,000, एंड द कैश रिजर्व रेशियो इज डिटरमाइंड बाय द रूल इज सपोज 20%. बैंक को 20% अपने पास रखना है, मतलब कि ₹200 अपने पास रखना है, ₹800 बैंक यहाँ पे लैंडिंग कर सकता है. देन द बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट अप टू ₹1,000 into 1/20%, that is 800 rupees bank can lend. In other words, primary deposit of 1,000 can create a money supply of ₹5,000. See, बैंक ने क्या किया, 20% अपने पास रखा, ओके, बाकी 80% लैंडिंग कर दी है. जिसको भी लैंडिंग किया होगा वो 80% वो घूम के वापस से बैंक के पास ही आने वाला है. ठीक है, तो दैट माई 1,000 rupees at 20% बिकम माई 5,000 rupees. You can clear it out with the following table. Okay, see, suppose बैंक पार्टी है, 1,000 is नेट डिपॉजिट, रिजर्व रेशियो 20%, मतलब 200 रुपये साइड पे रखे, 800 का लैंडिंग किया, लोन दिया, वो 800 रुपये जिसको भी लोन दिएंगे घूम के वापस से बैंक में आने वाला है, तो बैंक बी 800 मिले. वन सेकेंड, रूल इज द सेम, 20% जितना मिलेगा 20% रखना है. 160 रखा, गया 640% से वापस लेके आएगा बैंक में, उसका 20% रखा. इस ऐसे करते करते सी द डिपॉजिट्स which was actually 1,000 now it become 5,000. ऐसे करते रहोगे it will become 5,000. रिजर्व रेशियो कितना हो गया 20% पे 1,000. ओके, तो नेट लॉसेस, नेट लोन्स जो दिए बैंक ने, आपके थे 1,000, तो बैंक 1,000 दे पाएगा, बट सी 20% इस पे कितना हो गया, वो 4,000 हो गया. तो यू कैन विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इवेल्युएट इट आउट
कि देखो इतना होता है, अगर सपोज बैंक का कैश से ओनली 5% है, okay, only it is of 5%, so see what will be the amount of new deposits, then what will the amount of net new loans, you can find it out. ट्राई करना फाइन करने की कि अगर बैंक का कैश रिजर्व रेशियो ओनली 5% है, 20% है तो 1000 बिकम 5000, ओके, तो 5% है तो 1000 विल बिकम हाउ मच, जस्ट फाइंड इट आउट, ओके ना. Number fifth function is interbanking transactions. Okay. Bank provides short-term and long-term credit to one another for time to time. Interbanking मतलब एक बैंक के पास पैसा कम पड़ा, उस बैंक ने दूसरे बैंक को यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे दे दिया. Short-term credit is provided by one bank to another through the central bank and is called the call money. Short-term के लिए पैसे मिलते हैं. Central bank is a part of it. वो हाँ बोले तो ही possible है, पे इसको बोलते हैं one type का call money. The interest rate on the call money is called the call money rate. इस पे भी एक बैंक को दूसरे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं call money rate. Okay. Now I'll be teaching you secondary other function of commercial banks. Okay. So in that, number one is agency and utility services. A bank provides various utility and agent banking facilities towards customers. For example, a bank can act as a mediating agent by providing a letter of credit to the exporter on behalf of the importer. Last year you have studied about export and import procedure in OC, I think so. Okay, so you are better knowing what do you mean by letter of credit. ठीक है, एक्सपोर्टर को मेरी इंटरनल बैंक, इंडिया की बैंक, सपोज मैंने डीलिंग किया विद ऑस्ट्रेलिया, ओके, तो इंडिया की बैंक एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के देता है कि भाई तू एक्सपोर्ट कर दे, डोंट वरी, आई एम ओवर हियर, इफ पेमेंट इज नॉट देयर देन आई विल पे यू अमाउंट. तो सी बैंक इज हैविंग द फैसिलिटी ऑफ एजेंसी आल्सो. He is taking the guarantee on behalf of you, on the behalf of importer. Bank also provide underwriting services to the various businesses. Underwriting services का मतलब होता है, suppose when a newly established company want to establish himself into the market, okay, then with a particular bank, as per the government rules, the particular businessman has to earn, he has to sell the shares in the market. So suppose कि minimum subscription is of 90% of my फेस वैल्यू ऑफ माई फिक्स एसेट्स. सपोजली मुझे फिक्स एसेट्स है मेरा 1 करोड़ का, 1 करोड़ का 90% इज माई 90 लाख रुपीज. तो 90 लाख रुपीज आई हैव टू सेल द शेयर्स इन द मार्केट. वो भी क्या, कंपनी स्टार्ट हुई नहीं है अभी तक. कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास से एश्योरिटी लेनी पड़ेगी, यस आई एम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. तो वो प्रूव करने के लिए आई हैव टू सेल 90% अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओके ना. सो दैट अमाउंट मुझे बेचना है मार्केट में. Bank is government is giving me some time period for that also. Supposedly 2 months, 120 days you can see, 6 months you can say. तो government gives us particular time period. अगर उस time period के अंदर मैंने उतने पैसे कमा के दिखा दिए तो it's okay. तो I'll get the permission to establish the company. अगर वो नहीं तो फिर I cannot. Supposedly government has given me 140 days. 120 days is over. I have got to earn 90 lakh rupees. 120 डेज हो चुके हैं, 140 डेज अवेलेबल है, ओनली 20 डेज आर रिमेनिंग. ओके, स्टिल मैंने 90 लाख रुपीज नहीं कमाए हैं, सपोज कि 50 लाख ही कमाए हैं, 40 लाख है स्टिल पेंडिंग. तो आई विजिटेड द बैंक. बैंक विल गिव मी अंडर राइटर्स. ओके, बैंक बोलेगी एक काम कर, ठीक है मैं बन जाता तेरा अंडर राइटर, मैं तुझे देता हूँ 40 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, वॉट एवर द डिफरेंस अमाउंट इज, एंड यू गिव मी द शेयर्स. तो बैंक इस तरीके से भी एज अंडरराइटर भी आपको हेल्पफुल यहाँ पे होती है. ओके, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर टू पे टैक्स चालान पे कर सकते हैं. बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्स, ऑन डिपॉजिट वॉल्स अवेलेबल होते हैं कस्टमर्स के लिए, वेर इन दे कैन सेफली स्टोर द प्रीशियस ज्वेलरी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो यहाँ पे. बैंक प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज फॉर वेरी स्मॉल बिजनेसेस. माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज. When small payments are to be made with full proof security, banks provide service to the payer by issuing draft or pay order दे देती है, वो भी काम है पे आता है. And number second is providing various facilities with changing times. Banking is an evolutionary concept. There is a continuous expansion and diversification of the functions. Change होते ही रहता है, upgradation होते ही रहता है उनकी functions के अंदर. Activities and services of the banks. In present times, electronic transfer of money from the account of one customer to that of the other customer of any bank पॉसिबल हो सकता है. हम कैश चेक यूज नहीं करना. इज डन थ्रू फैसिलिटीज लाइक NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. बोथ दिस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज की वजह से सब पॉसिबल हो चुका है.
अब मुझे बैंक तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कस्टमर का अकाउंट नंबर IFSC कोड अवेलेबल है, मैं उसके अकाउंट में इजीली मनी ट्रांसफ़र पे कर सकता हूँ। Besides, customer can get various detail of their account as well as make payments, buy goods, book ticket, etc. on their computer or mobile phone through internet banking and mobile banking app. Banks also provide safe deposit vaults and facilities of डीमैट अकाउंट भी। डीमैटर्स अकाउंट अगर मुझे सैस में डीलिंग करना है तो डीमैट अकाउंट मेरे पास कंपलसरी होना चाहिए, वो भी बैंक अवेलेबल करवाती है। दिस इज एन अकाउंट वेयर सैस एंड डिबेंचर्स बॉन्ड्स, ये हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से परचेस सेलिंग हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे फिजिकल फॉर्म में होल्डिंग करने से बेटर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखने में मुझे यहाँ पे काफ़ी काम आता है। द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।